دوسرے جنم کی اس کہانی کو دوسری کہانیوں پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اس کہانی میں اصرار و تجسس بھی ہے اور سائنس و قرآن پر بحث بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہی میں نے یہ لکھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا دور ہے۔ اس دور میں مذہب کا اثر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا کہنے والے کسی حد تک غلط ہیں۔ میں نے اسی نقطے کو مرکز بنایا ہے۔ سائنس و اسلام پر ایسی کوئی کہانی شاید ہی آپ نے پڑھی یا سنی ہو۔ اس کہانی میں تھرل بھی ہے اور سسپینس بھی، پر اسراریت بھی ہے اور سائنس بھی، یعنی ایک کہانی میں کئی قسم کی کہانیاں ہیں۔ یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ والسلام، پرویز بالگرامی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دوسرا جنم ایپیسوڈ نمبر 2۔ دونوں ہی بغیر بیوی والے تھے۔ پروفیسر نے بیوی کو طلاق دے دی تھی اور غلام رسول کی بیوی مر چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں میں خوب نبھتی تھی۔ ان کے درمیان ایک اور ہستی تھی، وہ تھی ڈورتھی، پروفیسر کی شاگردہ، لیکن پروفیسر نے امریکہ سے آتے وقت اسے بھی اپنے راز میں شریک نہیں کیا تھا۔ امریکہ چھوڑنے سے پہلے انہوں نے اپنے ایک دوسرے نوکر باقر شاہ کو پاکستان بھیج دیا تھا۔ وہ گلگت کے نگرہو پر کار کا رہنے والا تھا۔ جب وہ پاکستان آئے تو بجائے گجرانوالہ جانے کے سیدھے نگرہو پر آ گئے۔ باقر شاہ نے انہیں اس گاؤں تک پہنچایا۔ اسی کی معرفت حویلی کا سودا ہوا۔ یہ علاقہ شہر کے ہنگاموں سے دور تھا، راستہ دشوار گزار، اس لیے یہاں تک کوئی آ نہیں سکتا تھا جو ان کے کام میں مخل ہوتا۔ اس لیے وہ بڑے آرام سے تجربات کر رہے تھے۔ ان کی تمنا تھی کہ اب ان کی نئی تحقیق پاکستان کے نام پر آئے، مگر یہاں آتے ہی وہ الجھ گئے تھے اور انہیں الجھایا تھا اس چھوٹے سے بچے نے، علی مدد شاہ نے۔ اس وقت بھی وہ اسی بچے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ وہ بچہ ان کے لیے معمہ بن گیا تھا، لیکن اس سے بھی بڑا معمہ یہ تھا کہ یہاں کی فضا انہیں عجیب سی لگ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ ان کا جانا پہچانا ہے، وہ پہلے بھی یہاں آ چکے ہوں، مگر یہ حقیقت نہیں تھی۔ ان کی بات تو دیگر ہے، ان کے والدین بھی اس دور افتادہ علاقے میں کبھی نہیں آئے تھے۔ عثمان، چائے بھجواؤں؟ دروازے پر کھڑے غلام رسول نے کہا تو وہ چونک گئے۔ نہیں، تم یہاں آ کر بیٹھو، پروفیسر نے کہا تو غلام رسول اندر آ گیا اور سامنے بچھے صوفے پر بیٹھ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ پھر بولا، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ یار، میرے دماغ کی چولیں ہل گئی ہیں۔ یقین کرو گے، آج میں نے ایک ایسے بچے کو دیکھا جس نے اس گاؤں سے باہر قدم نہیں نکالا، مگر فر انگلش بول رہا تھا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ حیرت کی بات نہیں ہے، ایک بچہ انگریزوں کے لہجے میں انگلش بولے، وہ بھی اس علاقے کا جہاں کے لوگوں نے انگلینڈ کی کیا بات لاہور کراچی بھی نہیں دیکھا۔ وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا، اس سے کچھ بعید نہیں، وہ کسی سے بھی کچھ کرا سکتا ہے۔ غلام رسول نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ آج مجھے کچھ ایسے لوگ ملے جو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہو سکتا ہے تمہاری شباہت کسی سے ملتی ہو۔ شباہت ملنے پر لوگ اس طرح نہیں چونکتے، شباہت کی بجائے صورت مل رہی ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ پروفیسر نے ہنکارا بھرا۔ مٹی کے انسان کو وہ مالک جیسا چاہے بنا دے۔ یار غلام رسول، انسان کی اتنی توہین نہ کرو۔ انسان گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ ہے، سب کی شکلیں ایک جیسے کیسے ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ سنو کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تم آدمی بن کر چلنے لگے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کچھ زمین میں موجود ہے وہ انسانی جسم میں ہے، یعنی کہ انسانی جسم میں فلوروفین، کوبالٹ، مینگنیز، تانبا، آیوڈین اور زنک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ میگنیشیم، سوڈیم، پوٹاشیم، فاسفورس،
क्लोरीन, सल्फर और लोहा भी मौजूद है। इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी जिस्म का हिस्सा है और यही मिट्टी का जुज़ है, यानी अज्जा से मिट्टी बनी है। अगर दौरे जाहलियत में ये साइंसी असलाहात बताई जाती तो शायद ही किसी के समझ में आता, इसीलिए सीधे सीधे मिट्टी कहकर बात ख़त्म कर दी गई। भाई गुलाम रसूल, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मेरा यकीन है कि कुरान पाक इल्हामी किताब है और इल्हामी इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। बाद बातें खुद मेरी समझ में नहीं आती, प्रोफेसर ने कहा। हर बात को समझने के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है। कुरान पाक को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने अपना नूर भेजा, जिसे दुनिया वालों ने हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पहचाना। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहता सवाए मेरे हुक्म के। जब अल्लाह ताला ने यह कह दिया तो हम पर लाज़िम है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात को परखें, उस पर गौर करें कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा उसमें क्या बात मज़मर है, ताकि कुरान पाक खुद ब खुद समझ में आता चला जाए। सूरतुल अंबिया में आयत नंबर 33 में बताया गया कि हमने आसमान व फ़िज़ा को महफूज छत बनाया। या सूरह मुल्क 17, क्या तुम इस बात से बेखौफ हो कि आसमान में भी सल्तनत करता है, वो तुम पर पत्थर बरसाए। अब गौर करें, क्या आसमान गैसों का मजमुआ नहीं है? आसमान और फ़िज़ा, उसे ध्यान में रखकर सोचें। फ़िज़ा यानी दुनिया से कुछ ऊपर, क्या ओज़ोन और दीगर गैसें नहीं हैं जो हर वक्त बरसते पत्थर शहाबे साकब से हमारी हिफाजत करती हैं? दौरे जहालियत में लोग ना तो कशिश से वाकिफ़ थे और ना हर तरफ फैली गैस से और ना शहाबे साकब से। बताएं पहले हैं इंकशाफ बाद में कराया है। मसंद अहमद इब्न हम्बल जिल्द सोम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मरवी है, तुम ऐसे अमूर देखोगे कि जिनकी कदर तुम्हारे नज़दीक बहुत होगी और तुम आपस में सवाल करोगे, क्या पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनके बारे में कुछ फरमाया है? गुलाम रसूल की तकरीरें जारी थी कि एक नौजवान लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसे देखकर वो दोनों बुरी तरह चौंक गए। वो मकामी नहीं थी, शक्ल ही से फरंगन लग रही थी। उसने कंधे पर बैग लटका रखा था और हाथों में बड़े से सूटकेस की बेल्ट थी, जिसकी मदद से वो सूटकेस को घसीट कर लाई थी। सूटकेस पर हवाई कंपनी BOAC का टैग लगा हुआ था। शायद वो एयरपोर्ट से सीधी वहां आई थी। उसने उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, बिल आकर मैंने आप लोगों को ढूंढ ही लिया, मगर तुम्हें यहाँ का पता बताया किसने? गुलाम रसूल ने पूछा। मैं अली शाह के घर गई। वहाँ जाकर मैंने कहा कि मेरा बैग चोरी हो गया है। इस बैग में वो डायरी थी जिसमें पता था, प्लीज़ मुझे प्रोफेसर साहब तक पहुँचा दें। वहीं से मालूम हुआ कि आप लोग इस गांव में रह रहे हैं। लड़की ने कहा, तो तुमने यूं हमें ढूंढा? प्रोफेसर ने पुरसोच अंदाज में कहा, लेकिन सर आपने ऐसा क्यों किया? ये चोरों की तरह छुपते छुपाते सफ़र करना मेरी समझ में नहीं आया। मेरी इतला के मुताबिक आप तुर्की के इनकरा में आखिरी बार देखे गए, फिर आप दोनों होटल का कमरा बंद करके सैर के लिए निकले। इस दौरान में आप पर सब की नज़रें जमी रहीं, एक एक पल की रिपोर्ट बनती रही। फिर आप 4 में से 3 घंटे तक तो नज़र आए, लेकिन दरमियान में 1 घंटा आपने कहाँ गुजारा किसी को पता नहीं। फिर 2 दिन तक आप दोनों होटल भी में ही रहे, कहीं भी बाहर नहीं निकले। मैं सच कह रही हूँ ना? लड़की ने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। बिल्कुल सही, तुमने सच कहा, प्रोफेसर ने गुलाम रसूल की तरफ देखकर लड़की से कहा। 2 दिनों के बाद आप दोनों ने होटल छोड़ दिया और एक मज़ाफ़ाती इलाके में चले गए। फिर वहाँ से कहाँ और किस तरफ गए किसी को खबर नहीं। मेरा दोस्त मार्टिन जो CIA की सिविल सर्विस डिपार्टमेंट में है, वो खुद परेशान है। मुझे लगातार अपने दफ्तर बुला कर तंग करता रहा, क्योंकि उनका ख्याल है कि आपको अगवा कर लिया गया है। तो तुम उसी के मशवरे पर मुझे ढूंढने निकली हो? गुलाम रसूल ने सवाल किया। जी नहीं,
मैं तो अपने अधूरे तजर्बे को पूरा करने के लिए प्रोफेसर की गाइडलाइन की मतराशी थी। हम चोरों की तरह नहीं खुलेआम निकले थे, गुलाम रसूल ने कहा। ये और बात है कि हमारे बदख्वाहों की नज़रों से हम मख्फी रहे। बिल्कुल उसी तरह याद करो कि एक सरतापा गुनाहों में डूबे हुए मुल्क में जब इस्लामी इनकलाब आया तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे मुल्क को धचका पहुंचा, क्योंकि उसी के इशारों पर वहाँ के मुसलमानों को गुनाहों की दलदल में धकेला गया था। याद करो कि वहाँ के बादशाह ने कानून बना दिया था, इन तमाम लोगों को एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा जो अपनी बीवियों को नाइट क्लब लेकर जाएंगे। शराब पीने वाले को एक्स्ट्रा रकम मिलेगी। स्कूल का बच्चा अगर क्लब का मेंबर बनेगा तो उसकी फ़ीस माफ़ हो जाएगी। इसी किस्म के सैकड़ों कानून बनाकर हुकूमत ने वहाँ के मुसलमानों को इस्लामी अहकाम से गद्दारी पर उकसाया था। सबसे अहम बात यह है कि 1925 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने 3 मुल्कों में भीख वक़्त अपने खर्चे पर इमाम मेहदी पैदा कराए थे, सूडान, ईरान और हिंदुस्तान। सूडान और हिंदुस्तान के मेहदियों ने जो कुछ किया सो किया। सबसे बड़ा फितरा ईरान के खुद साख्ता मेहदी बाब और उसके शागिर्द बहाउल्लाह ने बर्पा किया। ईरान के शाह काचार ने जब उन्हें निकाल बाहर किया तो इसराइली शहर हीफा के आके में हेड क्वार्टर बना लिया। उन्हें वहां से अमेरिका मुंतकिल किया और उनके मानने वालों को दोबारा ईरान भेजा गया। उन पर वहां के शहनशाह ने मराआत की बारिश कर दी ताकि वह मुसलमानों के ईमान को मज़ीद ख़राब कर सकें, मगर मुसलमानों का ईमान भी कभी ख़राब हुआ है। खैर, मैं बता रहा था कि इस मुल्क में जब इस्लामी इनकलाब आया तो मुझे याद है कि अमेरिका ने वहाँ फंसे हुए अपने ख़ास बंदों को निकालने के लिए एक ख़ास स्क्वाड भेजा। यकीन करोगी कि वो तमाम तैयारे उस मुल्क की फ़िज़ा में दाखिल होने के बाद खुद ब खुद तबाह हो गए। कैसे, ये आज तक किसी की समझ में नहीं आया, मगर मैं जानता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ था। उसकी सिर्फ एक वजह थी, जो अल्लाह ताला का मुकर्रब होता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। जब तक उस मुल्क के सरबरा अल्लाह ताला के मुकर्रब रहे, अल्लाह ताला की ताईद हासिल रही। अब वही मुल्क रिवर्स में है। गुलाम रसूल ने पूरी तकरीर कर डाली। आपकी बातें दिलचस्प तो होती हैं, मगर एक ख़ास फ़िक्र से मगलूब हैं, यानी इस्लाम अज़म के गिर्द घूमती हैं। इसलिए इन बातों को छोड़ें और ये बताएं कब वापस जाना है। फ़िलहाल तो कुछ दिन आराम करना है ताकि तजर्बात के लिए नई तवानाई मिले, गुलाम रसूल ने कहा। मगर यहाँ भी तो आप लोगों ने तजर्बा गाह बना रखी है, लगता है काफ़ी दिन का प्रोग्राम है। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये लेबॉर्ट्री तो प्रोफेसर साहब के एक दोस्त की है, गुलाम रसूल ने द्रोह गोई की। आप फिर झूठ बोले, शेम शेम। आप खुद को सच्चा मुसलमान भी कहते हैं और झूठ भी बोलते हैं। ये झूठ नहीं है, तुम यहूदी तो हर बात में झूठ बोलती हो। नो, ये आप फिर मेरी कौम से मुझे मिलाने लगे। मैं यहूदी घर में ज़रूर पैदा हुई हूँ, मगर मेरी फितरत वैसी नहीं है। यही बात यासर अरफात की बीवी भी कहती है, गुलाम रसूल ने फिर चोट की। तुम लोग फिर नटखट बच्चों की तरह लड़ने लगे। वो लंबे सफ़र से आई है, उसे आराम करने दो, जाओ जाकर आराम करो, प्रोफेसर ने आखिरी जुमला लड़की से कहा। गुलाम रसूल ने अली शाह को बुलाकर लड़की को ऊपर वाले कमरे में ले जाने के लिए कहा। उसके जाने के बाद गुलाम रसूल ने कहा, मुझे लगता है कि यह हमारा पीछा कर रही है। हो सकता है कि यह वाकई आगे बढ़ना चाहती हो। आप कुछ भी कह लें, मगर मुझे इन यहूदियों पर भरोसा नहीं। ये दुनिया की वाहिद कौम है जिसे खुद अल्लाह ताला ने ठुकराया है। ये वो एहसान फरामोश कौम है जिसने मनो सलवा को भी ठुकरा दिया था। यौम सब्त की पाबंदी अय्यारी से ठुकराने वाली ये कौम कभी एतबार के काबिल नहीं। जो होगा देखा जाएगा। अगर ये यहूदियों की एजेंट है तो होने दो, मैं अपने नोटिस बचाए रखूँगा। हाँ, इसी में बेहतरी है। ये कहकर गुलाम रसूल उठ गया। वो अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया था। प्रोफेसर वहीं सोफे पर बैठे इन तमाम बातों पर गौर कर रहे थे। इस छोटे से लड़के का अंग्रेज़ी बोलना, उसके घर वालों का उसे देखते ही चौंक जाना, बड़े मियाँ की करीद, उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछना, माजी की यादों को खरीदना, ये सब मिलकर ऐसे उलझे हुए सवालात बन गए थे
जो उनके दिमाग को हिलाए दे रहे थे। आज का दिन इन सभी बातों ने उन्हें उलझाए रखा था। तजर्बा गाह में भी नहीं गए थे और इस वक्त भी उनका जहन सही तौर पर काम नहीं कर रहा था। ऐसी हालत में फ्रीजेड सिल को निकालते तो आंखें ज़रूर उस पर रहती, मगर जहन कहीं और होता। नतीजन नोटिस बन ना पाते, नई बात मालूम ना हो पाती। इसीलिए वो ओवरकोट पहनकर बाहर निकल गए थे। हवेली से बाहर आने के बाद उनके कदम खुद ब खुद एक ख़ास सिमत में उठने लगे। उन्हें खुद भी पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं, बस आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। जब वो रुके तो ये वही जगह थी जहाँ वो कल आए थे। इस वक्त वो उसी पुराने पेड़ के तने से टेक लगाए खड़े थे। पता नहीं किस ख्याल में डूबे हुए थे और फिर वो धीरे धीरे बैठते चले गए। उनकी आंखें बंद थीं, ऐसे जैसे वो सो रहे हों। वही मंजर था, वही लोग थे, वही पहाड़ था और उसमें वो खुद बैठे हुए थे। उनके पीछे एक लड़की खड़ी थी, वही लड़की जो उस इलाके के सरदार की बेटी थी। मैंने कहा ना तुम चली जाओ, अगर तुम्हारे बाप ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, बाबा इस वक्त दुश्मनों को पिस्पा करने में लगे हुए हैं, इधर नहीं आएंगे। उधर तुम्हारे बाबा तिब्बतियों को पिस्पा करने में लगे हुए हैं और इधर तुम मेरे करदार को। नहीं, तुम चली जाओ। ऐन उसी वक्त शोर बुलंद हुआ। शायद भागते हुए तिब्बती फिर पलट आए थे और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। शोर सुनकर वो भी खेमे से निकल आए और पहाड़ के किनारे पर पहुंचकर नीचे झांकने लगे। नीचे वादी में टिड्डी दिल सिपाही लगातार कोशिश में लगे हुए थे, जबकि ऊपर से मंजीका के जरिए बड़े बड़े पत्थर बरसाए जा रहे थे। कड़ाव में गर्म किए गए पानी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सफूफ मिलाए गए थे, उसे बहाया जा रहा था। वो पानी जहाँ जहाँ से गुजर रहा था, वहाँ वहाँ की बर्फ़ कट रही थी। ये कटी हुई बर्फ़ सिलों की सूरत में नीचे गिरती जा रही थी। उन सिलों के नीचे, मंजीके के पत्थरों के नीचे, गलीलों की जिद में आकर और तीरों से छिदकर तिब्बती गिर रहे थे, दब रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सब कसम खा कर निकले हों कि उन्हें हर हाल में ऊपर चढ़ना है। वो सब टुकड़ियों में बंटकर आगे बढ़ रहे थे। हर टुकड़ी के साथ एक लंबे बालों वाला नौजवान था। नौजवानों के हाथों में लंबे लंबे डंडे थे और उन डंडों में हर डंडे के पर एक हाथ चौड़ा और 6 हाथ लंबा कपड़े का रंगीन टुकड़ा बंधा हुआ था। उसे वो हला हला कर नारे लगा रहे थे, गले फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे। ऐ अरबी संगदिल, किस ख्याल में डूबे हो? लड़की भी वहाँ भी पहुँच गई थी। ये इश्क गाह नहीं, ज़र्म गाह है। इस वक्त दुश्मन ऊपर आने की पूरी कोशिश कर रहा है और तुम्हें हरी हरी सूझ रही है। खुदा के लिए तुम चली जाओ। मुझे अपने अक्लमंद महबूब और बहादुर बाप दोनों पर भरोसा है। बाबा की बहादुरी और तुम्हारी अक्लमंदी दुश्मनों को आगे बढ़ने नहीं देगी। लड़की ने शोक लहजे में कहा। तुम कैसी लड़की हो? यहाँ जिंदगी और मौत का खेल हो रहा है और तुम टर टर किए जा रही हो। असद अल कबीर ने झंझलाकर कहा। मेरे प्यारे अरब, जिंदगी मौत की बाहों में पलती है, मौत की कोख से जन्म नहीं लेती। मैं जब तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी ना, तो मौत के जबड़े तक पहुँच कर लौटूंगी। जोनो ताशी ने हंसते हुए कहा। ला हौला वला कुवा, शर्म तुमको मगर नहीं आती, बेशर्म कहीं की। असद अल कबीर झंझला गया। ए लो, इसमें बेशर्मी की क्या बात है? जब तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं भी हर औरत की तरह माँ बनूंगी। ये तो औरत की महराज है, इससे बुलंद मकाम और कोई नहीं। यही हर औरत की तमन्ना होती है। खुदा के लिए मेरे कान ना खाओ। ये कहकर वो मुड़ा ही था कि एक सनसनाता हुआ तीर आकर उसके सर पर से गुजरता हुआ खेमे में धंस गया। लो, तुम्हारी मुराद बर ना आई, क्योंकि तुमने मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भी मैं बच गया। असद अल कबीर ने हंसकर कहा। तुम जंग पर तवज्जो दो, वरना मैं शादी से पहले ही बेवा हो जाऊंगी। लड़की हंसती हुई वादी की तरफ भाग गई। असद अल कबीर ने पूरी तवज्जो तिब्बतियों की फौज पर लगा दी। एहसन अल मुल्क ताशी की फौज का कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि वह चोटी पर थे, जबकि तिब्बती हमला आवरों की आधी फौज तबाह हो चुकी थी।
लेकिन उनके हौसले अभी भी जवान थे। संगो तीर की बारिश में भी वो अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। असदल कबीर की नज़र तिब्बती हमला आवरों के अकब में खड़ी एक घोड़ा गाड़ी पर टिकी हुई थी। वो घोड़ा गाड़ी सोने के पत्थरों से सजी हुई थी। उस पर एक गोल मटोल सा शख्स बैठा था जिसने बड़ी सी छतरी नुमा टोपी पहन रखी थी। उस टोपी की चारों तरफ मोतियों की झालरें लटक रही थी। असदल कबीर मंजीक के पास पहुंचा। उसने कुछ देर तक गौर किया और जब उसे जाविये का अंदाज़ा हो गया तो उसने मंजीक में पत्थर रखकर निशाना लिया और उस जाविये पर उछाला कि वो सीधा जाकर उस घोड़ा गाड़ी पर गिरे। वही हुआ। पत्थर हवा में परवाज करता हुआ उस शख्स के सर पर गिरा, जिसका नतीजा ये निकला कि तिब्बतियों में भगदड़ मच गई। अपने सरदार को मरते देखकर वो लोग मैदान छोड़कर भागने लगे। उनके कदम क्या उखड़े, ताशी के सिपाहियों के हौसले बुलंद हो गए। वो नारा लगाते हुए उनका पीछा करने लगे। ये तो सबसे बड़ी हकीकत है कि मैदान जंग में अगर सिपाही के पैर उखड़ जाएं तो फिर उन्हें मौत के चुंगल से छुड़ाना मुश्किल है। वो लोग भी ताशी के सिपाहियों का शिकार होने लगे, क्योंकि ताशी के सिपाही पहाड़ियों से नीचे उतर आए थे और अब वो उन्हें घेर कर मार रहे थे। उनकी कुव्वत बिखर गई थी, इसलिए वो तारने वाला साबित हो रहे थे। इसी दौरान में ताशी ने फतह का बगल बजा दिया। 4 हाथ लंबे कौस की शक्ल में मुड़े बगल, जिसे मकामी ज़ुबान में संगा कहा जाता था, कि बजते ही ताशी के फौजी रुक गए और वापस मुड़ने लगे। ताशी असदल कबीर के खेमे में आ गया था। वो उसे अपने सीने से लगाए हुए था। उसने उसे सीने से भींचते हुए कहा, शेखजादे, मुझे तुम पर फख्र है कि तुमने मुझे फतह दिलवाई। ये फतह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें मिली है। नहीं सरदार, फतह शिकस्त देने वाला सिर्फ अल्लाह है। हक की फतह ज़रूरी है। अगर तुम हक पर ना रहते तो तुम्हें शिकस्त होती, असदल कबीर ने कहा। लेकिन गुज़श्ता बार तो मुझे शिकस्त हुई थी, तभी तो मैंने तुम्हें इस उम्मीद पर जगह दी है कि शायद तुम मेरे काम आ सको। कामयाबी और नाकामी में बहुत से अवामल होते हैं। इंसान का हर लम्हा एहतसाब की ज़िद में होता है। हो सकता है कि तिब्बतियों के गुज़श्ता हमले से बेशतर तुमने कोई ऐसी गलती की हो जो अल्लाह तबारक ताला को पसंद ना आई हो। कातबीन की तहरीर इंसानी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती है और उसका बदल भी इसी दुनिया में मिल जाता है। ज़रा अंदाज मुख्तलिफ होता है। अगर ऐसा ना हो तो मज़लूमों की मौत यकीनी है। अरे संभलना, ताशी चीखा, क्योंकि असदल कबीर के पीछे वही मंजीक थी जिसने जंग का नक्शा बदल दिया था। तिब्बती जो हर साल लूट मार करने आते थे और उन लोगों के साल भर की कमाई लूट कर ले जाते थे, इस बार शिकस्त का दाग अपनी पेशानी पर सजाए शर्मिंदा शर्मिंदा लौट गए थे। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस शिकस्त की खबर चीनियों और काज़ा को भी होशियार करती और वो भी इधर आने से कतराते। ये इलाका इन सभी के लिए तरने वाला था, इसलिए हर कोई जुल्म ढाने के लिए, अपनी हवस मुल्कगिरी के लिए इसी इलाके को मुंतखब करते थे। ताशी भी जंगो बद्दल से दूर रहने की कोशिश करते थे, इसलिए भी चीनी लटेरों के हौसले फ़रों थे। पहले ताशी का कबीला तराई में आबाद था, मगर पे दर पे के हमलों ने उन्हें नकल मकानी पर मजबूर कर दिया था। यहाँ इस वादी में पहुंचकर भी उन्हें चैन ना मिला था। कभी चीनी तो कभी काज़क और कभी तिब्बती लूट मार करने आ जाते थे। ये इलाका हद से ज़्यादा दुश्वार गुजार था। नज़दीकी शहर भी तकरीबन 8 दिन की मुसाफत पर था, इसलिए असला भी खरीद कर नहीं ला सकते थे। नहते लोगों पर जुल्म ढाना ज़्यादा आसान है, लेकिन जब असदल कबीर इस इलाके में आया तो उसने यहाँ का नक्शा ही बदल दिया। वो मशहूर माहिर इल्मे कीमिया जाबर बिन हयान के शागिर्द जाफ़र बिन हसैन कंदी का शागिर्द था। हिकमत की आला तालीम हासिल की थी। बगदाद के नामूर लोगों में उसका शुमार होता था, लेकिन उसकी इसी शोहरत ने उसके दुश्मनों की तादाद में इजाफा कर दिया और वो अपनी जान बचाकर वस्त के रास्ते कीमान आया और फिर बाकू जाने के लिए नए सफ़र पर रवाना हुआ और भटक कर यहाँ पहुँच गया। इस इलाके की मजलूमियत ने उसे मतवज्जा कर लिया और वो यहीं ठहर गया।
तीगो तबके के लिए फौलाद की ज़रूरत थी जो इस इलाके में नापीद था। इस जगह उसने इल्म कीमिया का इस्तेमाल किया और ऐसे ऐसे हथियार बना लिए जिसके बारे में कभी किसी ने सुना भी ना था। मुख्तलिफ पेड़ पौधों के रस और मादनियात से जो इस इलाके में बाआसानी दस्तयाब थे, उसने कई ऐसी चीज़ें बनाई जो गिरते ही धमाके के से फट जाती और दूर दूर तक आग बिखर जाती। ये मंजीक भी उसी ने बनवाई थी। उसकी बनाई हुई मंजीक ने अब इस जंग की बसात पलट दी थी। वही लुटेरे जो आते ही इलाके को लूट लेते थे, इस बार लुट कर भागे थे। उनकी वजह से अकबी बस्तियां महफूज हो गई थी और अब उसी मंजीक में रखा पत्थर उसके सर पर गिर रहा था। ताशी ने चीखने के साथ उसे धक्का दिया था, जिसकी वजह से उसका सर तो महफूज रहा मगर उसका कंधा बच ना पाया था। वो भारी पत्थर उसके कंधे को छूता हुआ नीचे गिरा और फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसका शाना शल हो गया हो। दर्द की तेज लहर ने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया था। उस चीख ने प्रोफेसर को बेदार कर दिया। उन्होंने चौंक कर इधर उधर देखा। वो उसी पेड़ से टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने चौंक कर अपना दाहिना शाना टटोला, वहाँ दर्द का नामो निशान न था। वो सोचने पर मजबूर हो गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये पेड़ उन्हें क्यों रात के एक मखसूस हिस्से में अपनी तरफ खींच रहा है। वो यहाँ आते ही क्यों सो जाते हैं। बार बार एक ही ख्वाब क्यों दिखाई दे रहा है और ख्वाब भी अपने आप में अजूबा है। ये किस सवार ख्वाब क्यों नज़र आ रहा है। उन्होंने इस बात पर भी गौर किया था कि ख्वाब आना बंद होते ही और नींद से बेदार होते ही उन्हें इस पेड़ से वहशत सी होने लगती है और वो जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाने के लिए पर तोड़ने लगते थे।